सही है सेक्रेटरी साहब, सर क्यों नहीं दी जा रही पेंशन इन लोगों को? सर ये पेंशन के पात्र नहीं है सर। एक्चुअली ये जो शायद मिल रहा होगा सर। नहीं नहीं, शायद मिल रहा होगा, मिल रहा है, दो चीजों में फर्क है सर। आप यू मेक अ स्टेटमेंट ऑन ओथ वेदर दे आर गेटिंग। सर ये 1988 ऐसा इसमें कहाँ लिखा है कि ये प्रेस के कर्मचारियों को छोड़ के है? पढ़िएगा इसमें कहाँ लिखा है। 31 मार्च 88 को मंडल की सेवा में थे राज्य सरकार द्वारा। सर आपने इन लोगों को दिया था विकल्प? ये सर इन लोगों को दिया था। वेयर इज दैट फॉर्म? हम बुला लीजिएगा, क्यों बुलाया था इनको? So I could not appear in the first round. जी जी, Number 4, it was listed. Although the reply is there, but my apologies, Lord, I could not appear. जी, क्यों Unconditional. नहीं दी गई पेंशन इनको? बताइए सेक्रेटरी साहब, सर क्यों नहीं दी जा रही पेंशन इन लोगों को? सर ये पेंशन के पात्र नहीं है सर। एक्चुअली ये जो प्रेस के कर्मचारी है सर, ये फैक्ट्री एक्ट से गवर्न थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और इनको ईपीएफ के प्रोविडेंट फंड का पेंशन बाकी लाभ इनको मिलता है सर। मिल रहा है इन लोगों को सर जी। और वो क्लेम भी कर चुके हैं सर ऑलरेडी। और सेकेंडली सर ये लोग जो प्रेस के कर्मचारियों के मध्य प्रदेश शासन की अनुमति के उपरांत सर 2001-9-2004 से बाकी कर्मचारियों को उसके बाद जो रिटायर हुए सर उन लोगों के लिए पेंशन लागू की गई थी। ये लोग उससे पहले ही रिटायर हो चुके हैं सर। तो बताइए कहाँ पर है ये विकल्प का प्रयोग लिखा है आपने पेज 40 पे? थोड़ा सा समझाइएगा, ये पिटीशन का पेज 40 आइएगा, जो रेगुलेशंस हैं 1991 के, 1991 पेंशन इसमें आपने विकल्प का प्रयोग लिखा है ना सर। वे समस्त कर्मचारी जो 31 मार्च 88 को मंडल की सेवा में थे राज्य सरकार द्वारा। सर आपने इन लोगों को दिया था विकल्प? ये सर इन लोगों को दिया था। वेयर इज दैट फॉर्म? इनको ऑप्शन दिया था एंड दे हैड ऑप्टेड टू कंटिन्यू एज अ मेंबर ऑफ द। इनको नहीं दिया सर, ये प्रेस के कर्मचारी अलग थे सर और ये बोर्ड के अन्य कर्मचारी के लिए थे सर। ये 1988 इसमें कहाँ लिखा है कि ये प्रेस के कर्मचारियों को छोड़ के है? पढ़िएगा इसमें कहाँ लिखा है। Out of these three, my lord, only the petitioner number 2 exercised his Option. he specifically mentioned that in para 5 of the reply, lord. So he is getting pension. He is getting pension. बाकियों को सर gratuity दिया. No, he is also not getting because he is a petitioner here as number 2, Miller. Sir, Miller, they gave the pension as read out at page 40, Miller, to persons who retired prior to 88. Then they brought about regulations which they make a mention at page 6 of the return, Miller. That persons retiring on 1/9/2004 or thereafter shall get the benefit. So petitioners are only about 4 or 5 persons who are not getting this benefit. When did your clients retire? On different dates at that's para 97, para 6 of our reply. 2001 and 2003. Para 6 पढ़िएगा जी। इसमें 1, 2, 3, 4 की दिया हम लोग। Shri Sohan Lal Agnihotri, senior reader, the petitioner number 1 was granted gratuity amount of so and so by order dated so and so, filed as so and so. और date of retirement para 4 में भी लिखा है सर। That's most respectfully submitted the petition number 1 Shri Sohan Lal Agnihotri retired from service on 31/7/1997. The petitioner number 2 Shri P. Padmakaran retired on 30/11/2001, whereas the petition number 3 Shri S.P. Pandey retired on 31/7/2003. Out of them, Lord, only number 2 exercised his demanded pension by making a representation under clause 8(2) of the Mandal Karmachari Pension Viniyam 1991 to the secretary, Lord. So इनको बताइएगा कहाँ आप लोग के ऊपर एप्लीकेबल है प्रेस के कर्मचारियों के ऊपर?
Under section 16(2), my lord, of the Employees Provident Fund, it says when an exemption is granted under 16(2), they will grant the pension under the Pension Rules 1976 and or under the Madhyamik Shiksha Mandal Pension Regulation 1991, which is being given to other employees of the board. So you were not a member of this Employees Provident Fund scheme. We were working under the press department of the Madhyamik Shiksha Yes, Mandal. They yes. said press department is under the Factories Act. Employees in the press are under the Factories Act, and so the labor laws are attracted both state and central, and for which there is a exemption to be granted under section 16(2). कहाँ है वो? ये आपका R32 पढ़ेंगे जरा? R32 It says note मंडल की कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक स्वयंसो पर लिए गए निर्णय अनुसार मंडल मुद्रणालय के अधिकारी कर्मचारियों हेतु भारत सरकार के दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एक्ट 39 ऑफ 1972 के प्रावधान अनुसार एवं मध्य प्रदेश शासन के दी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में प्रवाहित नियम निर्देशानुसार तथा इसमें समय समय पर किए गए संशोधनों के अधीन पात्रता अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान करना स्वीकृत किया जाता है। यह आदेश दिनांक 16/11/1995 जिस दिनांक से प्रेस स्टाफ की प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के पेंशन योजना में से कवर्ड है से प्रभावित माने जाएंगे। ग्रेच्युटी भुगतान का प्रकरण पेंशन सेल द्वारा तैयार किया जाकर भुगतान की कार्यवाही स्थापना व कक्ष द्वारा की जाएगी। उक्त व्यय मंडल बजट स्वयंसो में सेवानिवृत्त एवं मृत्यु उपदान शीर्ष में प्रभावित राशि से किया जाएगा। एंड thereafter the amounts were So pension is to be paid under this provident fund. The payment, ये कौन सी पेमेंट ऑफ प्रेस स्टाफ को प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की योजना, कौन सी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ही होगा ना ये, कि कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है ये, किस योजना से कवर किया है? ईपीएफ से। तो इनको ईपीएफ से पेंशन मिल रही है क्या? ईपीएफ से पेंशन मिला है सर उनको, मिला है? ग्रेच्युटी हम लोगों ने दे दी है। अच्छा, ऐसा बता दीजिए ईपीएफ से पेंशन मिला है, कहाँ कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं तो ये सर क्योंकि वो उस फैक्ट्री एक्ट से गवर्न होती है सर, और वो कंट्रीब्यूशन पेंशन हम लोग जमा करते हैं, तो शायद मिल रहा होगा सर। नहीं, शायद मिल रहा होगा, मिल रहा है, दो चीजों में फर्क है। आप you make a statement on oath whether they are getting pension from this provident fund, employees provident fund or not. इतना स्टेटमेंट कर दीजिए आप। we'll verify and make a statement on affidavit. श्री उद्यन तिवारी, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, श्री हरप्रीत सिंह रूपरा, लर्नेड काउंसिल फॉर Number 3, madam. रिस्पोंडेंट नंबर 3, along with श्री, आपका शुभ नाम बताइए। श्रीकांत बनोत, श्री श्रीकांत बनोत BANOTH, बनोत, सेक्रेटरी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल। नेक्स्ट, reading from annexure R34, it is pointed out that R32, R32, madam. it is pointed out that factory employees, that is who are working in the press, were given pension from the Provident Fund Commissioner Pension Scheme. Full stop. Let a specific statement be made by the secretary on affidavit whether petitioners are getting pension from Provident Fund Commissioner or not. Let this statement be made within 2 weeks. List this case in the week commencing 13 March 2023.
So my unconditional apologies for not ठीक है, appearing. ठीक है, on ठीक है, ठीक है. Personal presence of the secretary is will not be required on the next date. I'm great. Thank you.